Good morning, everyone. Good morning, sir. Right. So, guys, as we discussed yesterday about various things, and then you guys came up with your designs and all, जैसे हम लोग कल डिस्कस किए थे. उसके बाद आज मैंने रिक्वेस्ट किया था आप लोगों से कि एक फेसबुक का कवर पेज हम लोग डिजाइन कर लें. ठीक है. सो कुछ उसके ऊपर प्रोग्रेस हुआ है आप लोगों की तरफ से? Any progress on Facebook cover page? Yes, sir. हाँ, एक मिनट में फिर शेयरिंग ऑप्शन दे देता हूँ, शेयर कर सकते हैं जी. शेयर कर लीजिए, मैं ऑप्शन दे दिया हूँ आप लोगों को. Okay, sir. Sir, is my screen visible? Yeah, it's visible. Okay. Sir, this is my Facebook cover page. Okay. Here is the icon of my business Okay. and the name of my company, Mhm. agency, sorry. Yeah. And here are the services and Contact, right? contact number. So I think when you will be putting this in cover, contact may go a little down in that. Anyways, but Okay. but that. But what will happen once you place it on Facebook, then we can adjust the position. Okay. Okay, sir. Right. That's okay. Fine. Okay. Here is the poster. All right. Yeah. Logo, you kept it down, right? Yeah, sir. This is the icon. Okay. So you have chosen these things from the template from Canva and then customized it, or you? Yes, sir. No, sir. I have chosen this from Canva and I have customized it. Good. Here is another poster, sir. Okay. Solution Prism, and then this. Yeah, that's okay. Cool. Yes. Done, sir. Yeah. No problem. Anyone else? Hello. Anyone else want to portray? Assalamu alaikum, sir. Salam, Salva. Yes, sir. I've also created the cover post as well as 2 to 3 posts also. Please. Let me share. Okay. Okay, this is your cover page, right? This was the first one which I planned, and I've added some text. So I thought it was too much text. So I went for this one. Okay. Nice. Okay. Shall I show the posts? Yeah, please. Okay. This is the first post. I've created multiple copies to try out which one looks better. Right. Yeah. Okay. This is the first one. Then second one. Yeah. Here you can do one thing. Yes, sir. You can do one thing.
this phone number and website, I'm like, when you see, you can put it in the same line, phone number at the left side, website And will right be at side. the right side. Yeah. Okay, sir. We'll change. Yeah. And lastly, this one is the way you said, right, left, Mhm. I've mentioned. Okay, all right. So Yes, sir. yeah, that's Done, sir. up to minus 50% off. Oh, so by mistake I did that. Right. minus 50% तो पता चला Safe. कस्टमर से और पैसे वसूल कर लिए आपने तो. No, sir. Done. Nice, good. Thank you, sir. Yeah. और किसी का कुछ है? Anyone else? Guys, अगर हैं तो बोलिए है, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ें. फिर सैफ, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास है, थोड़ा किया था। जी जी बताएं. आपको दिख रहा है स्क्रीन? जी जी स्क्रीन दिख रहा है. ये फेसबुक कवर है। Okay. So it seems that you are only providing trouble solutions to limited areas or limited part of the world. Is it? हाँ, Okay. तो पोस्ट में और है। Okay. ये पोस्ट है। Okay. ठीक है. और एक पोस्ट है। Right. कोशिश करिए पोस्ट में अपने फोन नंबर्स को भी डालने का. वेबसाइट तो है, फोन नंबर्स को भी डालने की कोशिश करिए. ओके। बिकॉज पोस्ट होगा क्या, वो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, बहुत सारी जगहों पे सर्कुलेट होगा. सो आपका फोन नंबर भी हो तो बेहतर है. ओके। और इसमें शायद आपने अपना लोगो यूज नहीं किया है. जी जी, लोगो थोड़ा. हाँ, बट कॉन्सेप्ट वाइज इट्स फाइन. जी. सो आप अलग अलग डेस्टिनेशन, अलग अलग लोकेशन को आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, सो दैट इज फाइन. ठीक है. बट ये है कि हमारा जो प्रोमिनेंस है, लोगो, फोन नंबर और वेबसाइट, ओके ओके. ये हमारा स्टैंडर्ड रहे कि हमारा हर पोस्ट में ये जाए. जी जी. ठीक है, बेहतर. और तो कुछ नहीं है सर? नहीं नहीं. और ठीक है. और किसी का है कुछ? Walaikum sir. हाँ, वालेकुम सलाम. I have also created. Yeah, sure. One. हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए, आपने शायद जो टेम्पलेट यूज किया है वो प्रो वर्जन यूज किया क्या? बिकॉज कैनवा का बैकड्रॉप में लोगो आ रहा है कैनवा का. ठीक है. शायद मुझे जहां तक लगता है कि प्रो वर्जन अगर आपने यूज किया हो तो कैनवा वाटरमार्क अपना रखता है. बट कॉन्सेप्ट वाइज इट्स ओके.
तो अब अगर मान ले कि आपको यही टेम्पलेट आपको पसंद आ रहा है, तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं कि अपीयरेंस से रिलेटेड या इस तरह के जो फ्री कॉपीराइट फ्री होता है, यानी गूगल में जाके आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस सर्च करते हैं, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा इस तरह का इमेज। तो आप इस इमेज को रिप्लेस कर दिए तो कैनवा जो लिखा हुआ आ रहा है ना, वो चीज खत्म हो जाता। ठीक है, तो अगर ये यूज करते हुए रहते हुए अगर आप फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, कहीं पे पोस्ट करते हैं, तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम या तो फ्री टेम्पलेट, जो कैनवा का फ्री टेम्पलेट है, उसको हम यूज कर लें, या फिर हाँ वहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप अपलोड करके या सर्च करके आप, ठीक है, फैशन अपीयरल करके कुछ सर्च कर लीजिए। अपीयरल करके सर्च कर लीजिए, बट इन इन कॉन्सेप्ट यस इट लुक्स ओके। ठीक है, हाँ सर्च करिए अपीयरल। ये देखिए बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फ्री वाले ऊपर ऊपर एक फ्री वाला था, थोड़ा सा, हाँ अपलोड भी कर सकते हैं आप, अदरवाइज हाँ हाँ उसी को यूज कर लीजिए, ये जो है, हाँ इसी को यूज कर लीजिए, इसको इंलार्ज कर लीजिए आप, बिल्कुल लेफ्ट राइट आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, इसको हो जाएगा आपका। यस, बस बस ठीक है, वहां तक ऊपर ही रखिए, ऊपर ही रखिए, सो दैट कंटेंट आपकी विजिबल रहेंगे। ठीक है, बस ठीक है, दैट्स ओके, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ और कुछ बनाए हैं? नहीं, that's it. अच्छा, पोस्ट नहीं बना पाए आप? हाँ, फेसबुक पोस्ट भी बनाने के लिए मैंने कहा था ना, ये हमारा कवर हुआ, एक पोस्ट बनाने के लिए भी, 2-3 पोस्ट बनाने के लिए भी मैंने कहा था। दैट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। और तो कुछ नहीं है गनी? No, nothing, sir. ठीक है, और किन्हीं का है? सलवा ने बता दिया, गनी ने बताया, मेरे ख्याल से सैफ भाई ने भी बता दिया है। ठीक है, और किसी का है? Sir, I created a Facebook cover. प्लीज प्लीज शेयर इट। Sir, is it visible? या दिस इज विजिबल। This is what I created, sir. जरा से यहाँ पे आके एरो पे आके कर दीजिए ना, जहाँ पे 26% है उससे और आगे। हाँ ठीक है, यू विश वी क्रिएट इवेंट ऑर्गेनाइज मेमोरेबल इवेंट्स फॉर यू, राइट। सो अब क्या है, ये आप कवर पेज बना रहे हैं, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इट्स एडवाइज टू प्लेस योर आइकॉन या फिर आपका लोगो या फिर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, राइट। ठीक है, Yes, sir. तो वो उस चीज को इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, बट कॉन्सेप्ट वाइज व्हाट यू वांट टू पोर्ट्रे, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आप कॉर्पोरेट जो इवेंट्स होते हैं उसके उससे रिलेटेड जो आप ये बैनर बनाए हैं, दैट इज ओके। मैं सजेस्ट करूंगा एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस, इट्स नथिंग टू से गुड और बैड, इट्स ऑलवेज टू से बेटर और मच बेटर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर आप कुछ ऐसे इमेजेस भी देखेंगे जो कि वर्टिकल स्ट्रैप्स टाइप के होते हैं, या थोड़े से आपके ये रहते हैं कि जिसके अंदर आप, हो सकता है यही चीज है, बट आप वर्टिकल स्ट्रैप्स अगर इसी के ऊपर डालें तो आप अपने सर्विसेज को भी पोर्ट्रे कर सकते हैं विद द ट्रांसपेरेंट लेयर। जैसे आप देखा होगा अभी एक सॉफ्टवेयर वाला किसने शो किया था, आई थिंक Aslam. असलम ने, राइट। तो उसमें क्या था, तो उन्होंने क्या किया था कि अपने सर्विसेज को भी थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन में डाल के उन्होंने किया था, राइट। तो आप अगर थोड़ा सा पोजीशनिंग ये कर लिए, तो आपके 2-3 जो सर्विसेज हैं वो आप नीचे जो यहाँ पे प्रिवेंट ऑर्गेनाइज मेमोरेबल इवेंट्स फॉर यू करके जो नीचे आपके पास स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पे आप कुछ चीजों को लिख सकते हैं विच एक्चुअली डिपिक्ट्स, बिकॉज ये फेसबुक का कवर होगा, यानी आपके सारे सर्विसेज के बारे में ये बात कर रहा होगा। ठीक है, तो वहां पे Yes, sir. थोड़े सी चीजों को अगर आप पोजीशन कर लें, जो टेक्स्ट में जाके सब हेडिंग के अंदर उसको एक बना के आप थोड़ा सा अगर उसको पोजीशन कर लें, तो दैट विल आल्सो हेल्प यू टू गेट बेटर विजिबिलिटी। ठीक है, Yes, sir. Sure. कॉन्सेप्ट वाइज इट्स ओके। ठीक है, Okay, sir. Thank you. और पोस्ट भी बनाया है क्या आपने? नहीं बनाया? No, sir. I didn't. ठीक है, कोई नहीं।
और किसी का है? अदीबा, अब्दुल्ला, फरहा, निपन? Fatima, you showed something or you didn't? Okay. Nipan, you have something to show? No, sir. Give me some time. I'll show it. It's about to complete. Just. All right, all right, all right. Fatima, you did something? I'm Fatima only, sir. Yeah, you did something? It's okay? Yeah. No. Yeah. Give me some time. I'll show you. Okay. All right, no problem. Thank you. Sir, I've made it on the laptop, but I have unfortunately I forgot laptop on my office, so I'm just trying to log in it through my phone. So No I'm problem. just trying. No problem. Okay. Farha, you did something? Farha or Mr. Abdullah? No, sir, I didn't make. Oh, try to make it. Oh, Okay, right. sir. Yeah. Okay. Irfan sir, you are there? All right. I think might be. All right, guys. So overall, if we see whatever the progress that you guys have made, yes, it's for everyone. I'm like, I should say that you have really, all of you have really made a remarkable progress, and that's good sign that yes, we are towards a learning mode. One thing that I'll try to say is basically we are quite occupied in something or other, but when you guys are sparing your qualitative and very precious time first thing in the morning, try to spare some more time so that you are done with some of the assignments, whatever we discussed about or whatever we are discussing about. Okay, anyways, so as we discussed yesterday, that we'll be working towards creation of Facebook business page, right? So I will start proceeding towards that. I have collated all your what you say designs, whatever you guys have made it. So at the end of the session, probably if we will get time today, we'll see to it, or else we will see tomorrow. I understand that all of you are having Facebook, right? I understand that, right? तो जब आप फेसबुक अपना ओपन करते हैं, जो भी जिस लेवल पे भी हो, आप लोगों का फेसबुक होगा, राइट? सो whatever you are posting, whatever you are doing, it's all there, right? तो जब आप यहाँ पे आते हैं, फेसबुक पेज पे आप आते हैं स्पेशली, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ के आप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, राइट? यू कैन क्रिएट बिजनेस पेज. सो टू स्टार्ट विद एनी कंपनी से, अगर कोई भी आदमी इंडिया के अंदर अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए बेसिक नेसेसिटी क्या है? ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके पास आधार हो, उसके पास पैन कार्ड हो और रेसिडेंशियल प्रूफ हो, राइट? तो वो ओपन कर सकता है. उसी तरह से फेसबुक पे बिजनेस पेज क्रिएट करने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास फेसबुक पे अकाउंट होना जरूरी है. ओके, जब आपका अकाउंट है, वही आदमी जिसका भी फेसबुक पे अकाउंट है, वही कोई बिजनेस पेज क्रिएट कर सकता है, राइट? तो जब आप अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे आप जब ओपन करते हैं, या फिर अगर आप मोबाइल पे भी ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरा आइकॉन, यानी जो आपके इमेज का आइकॉन आ रहा है फेसबुक में राइट साइड पे, टॉप राइट पे, वहां पे 9 डॉट्स आ रहे हैं, जिसके ऊपर माउस ले जाने के बाद मेन्यू का ऑप्शन आता है, राइट? तो वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, पोस्ट, स्टोरी, रूम, पेज. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्लिक ऑन पेज, राइट? जैसे ही आप पेज पे क्लिक करेंगे, इट विल आस्क फॉर सर्टेन इंफॉर्मेशन. आप किस नाम से पेज क्रिएट करना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, यू गाइज आर मोस्ट ऑफ यू गाइज आर फ्रॉम ISL कॉलेज, ठीक है? और निपन हमारे AMU से हैं, और सैफ ही इज इंडिपेंडेंट बिजनेस पर्सन, राइट? तो मैं यहाँ पे एक पेज बना रहा हूँ, डमी पर्पस पे ही पेज बना रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक. बट आप लोग जिस नाम से भी अपना क्रिएटिव बनाए हैं, जैसे
मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग है, सैफ का भी है, निपन का भी है, सलवा का है, फातिमा का है। तो अलग अलग लोगों ने, या फिर शहरियार का है, तो अलग अलग आप लोगों ने अपने अपने नाम से जो बिजनेस कार्ड्स या नाम से बनाया है, ठीक है। तो उसी तरह से आप यहाँ पे अपने पेज का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ISL डिजिटोज करके मैं बना रहा हूँ, ISL डिजिटोज एकेडमी करके मैंने इसका नाम दिया। ओके, कैटेगरी, ये किस चीज की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। तो अगर ये नाम अवेलेबल है तो ग्रीन टिक आ जाएगा, नहीं अवेलेबल होगा तो अपने आप आपको बोल देगा कि भाई यू नीड टू चेंज द नेम। ये इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी है या ट्रेनिंग हो सकता है, देखते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल, ओके, मान लें कि मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग, आप 3 कैटेगरीज तक डाल सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सोशल मीडिया एजेंसी आ रहा है, मैं सोशल मीडिया एजेंसी यूज कर लेता हूँ। और इंटरनेट मार्केटिंग शायद है, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज। ओके, सो मैंने 3 कैटेगरीज यहाँ पे यूज कर लिया है। ओके, अब आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन क्या डालना है, दिस पेज इज ए कोलैबोरेटिव पेज फॉर ISL कॉलेज एंड डिजिटोज। आप अपने हिसाब से अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ये पेज अपने कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन या जो भी ये पेज के बारे में होगा वो आप दे सकते हैं। ओके, ये करने के बाद आप क्रिएट पेज करेंगे, पेज आपका क्रिएट हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट काम जो आता है वो इसके बाद के स्टेप्स आएंगे। मुमकिन है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसको किया होगा। अगर ये डेस्कटॉप वर्जन है, ओके, हम इसको फर्दर चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे फिर आप जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो ये क्या कह रहा है, प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर क्या होता है, ये जो छोटा वाला आइकॉन आ रहा है जहां फ्लैग दिख के आ रहा है आप लोगों को, ISL डिजिटोज एकेडमी जो लिखा हुआ है, उसके बगल में जो लेफ्ट साइड में एक फ्लैग आ रहा है उसको प्रोफाइल फोटो कहते हैं। तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि भाई वी कैन अपलोड इट, ठीक है। तो मुमकिन है, मैं देखता हूं अगर मेरा प्रोफाइल पे कुछ अवेलेबल होगा तो मैं इसको डाल देता हूं। आप लोगों को जो मैंने कहा था कि ये अब जो आइकॉन मैंने आप लोगों को बनाने के लिए कहा था वो इसीलिए कहा था कि यहाँ पे बड़ी आसानी से हो सकता है। अब ये चूंकि आइकॉन फॉर्मेट में नहीं है, छोटा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम यहाँ पे कोई भी अपने हिसाब से अपना आइकॉन जो है हम डाल सकते हैं। लेट मी सी इन केस आई कैन, मेरे पास शायद होगा किसी और का ही सही। think I'm not having handy, but still I'll try. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक ये डालने की कोशिश की, विच अगेन हैज गॉन लिटिल हायर साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, कोई ना कोई एक आइकॉन हमें यूज करना है। ओके, सो यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर के पास आप अपने आइकॉन को यूज कर सकते हैं। सिर्फ एग्जाम्पल ये डी एक आइकॉन है, मैं यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करता हूँ डी को क्लिक करके, राइट। सो यू कैन सी कि ये इसका एक छोटा वर्जन है, तो ये यहाँ पे आइकॉन आ गया। ओके, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि अपने लोगो को एक आइकॉन और फॉलोड बाय उसके डिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट में लेके जाएं। नेक्स्ट है यहाँ पे ऐड कवर फोटो। तो आप लोगों ने जो फेसबुक का कवर फोटो बनाया हुआ है वो आप
ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मैं अगर अपने डाउनलोड्स में जाके एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ था, फॉर एग्जाम्पल कल मैंने ये एक फेसबुक कवर मैंने आप लोगों के सामने बनाने की कोशिश की थी, मैं उसको यहाँ पे डालता हूँ। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने डाला है तो ये क्या है, आपको एडजस्ट करने के बारे में बोलता है कि भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो हम इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बाद में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, मैं इसको सेव कर लिया। अब ये हमारा पेज जो है ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर वाइज ये हमारा पेज रेडी हो गया। अब ये और भी फर्दर चीजों को ऐड करने के लिए कह रहा है। ओके, तो जैसे ये हमारा पेज रेडी होता है, ठीक है, ये मल्टीपल चीजों के बारे में बोलता है। ओके, तो ये हमारा लर्न विद डिजिटल मार्केटिंग, इसको हम एडिट कर सकते हैं, रीपोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, आप चूज फ्रॉम फोटो, अपलोड फोटो, रीपोजिशन, अगर रीपोजिशन करना है हम इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे जैसे भी करना है हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो आपने जो भी बैनर बनाया है उसके हिसाब से इसको जब ड्रैग करेंगे, चेंजेस मतलब क्या विजिबल है क्या विजिबल नहीं है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत अपने टेम्पलेट के अंदर, अपने बैनर के अंदर फिर से चेंज करना पड़ सकता है। फिर भी अगर हम चाहते हैं तो हम इसको और भी फर्दर चेंजेस हम कर सकते हैं। ओके, और ये जो फोटो है इस फोटो को भी हम चेंज कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे कैमरा पे जाके और हम इस फोटो को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, एडिट प्रोफाइल पिक, व्यू फोटो, एडिट प्रोफाइल पिक्चर। ओके, एडिट प्रोफाइल पिक्चर में अगर कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको सेव कर लेते हैं एंड दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपका क्या हुआ, आपने बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया और उसके बाद ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने क्रिएट यूजर नेम। ठीक है, अब जो हमने कैटेगरी चूज किया था वो यहाँ पे आ रहा है, क्रिएट यूजर नेम। तो हम यहाँ पे अपने यूजर नेम को चूज करेंगे विच इज सेफ एग्जाम्पल ISL डिजिटोज एकेडमी। अगर ये अवेलेबल होगा तो ग्रीन टिक आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्रिएट, राइट। तो अब हमारे पेज का नाम क्या है, ISL डिजिटोज एकेडमी करके आ गया। ना आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नंबर्स आ रहे हैं। ये नंबर्स तब खत्म हो जाएंगे जब आप 10 या 10 से ज्यादा आपके पेज के फॉलोअर्स बन जाएंगे, तो आपका ये नंबर जो है आपके खत्म हो जाएंगे। स्टैंडर्ड ये है कि 25-30 के आसपास तक अगर पेज के फॉलोअर्स या लाइक्स अगर बन जाते हैं तो आपका ये खत्म हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि आप कॉल टू एक्शन बटन्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे आ रहा है ऐड बटन। तो ऐड बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो फेसबुक हमको बहुत सारे ऑप्शंस देता है कि आप चाहते हैं कि लोग आपके पेज को फॉलो करें या ऑर्डर प्लेस करें, बुक नाउ करें, कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें या मैसेजेस भेजें। ठीक है, तो मैं अगर कॉन्टैक्ट करना चाह रहा हूं तो मैं वेबसाइट का एड्रेस दूंगा। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस दे सकता हूं अगर लोग मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो। एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया। ठीक है, आपके पास अभी वेबसाइट नहीं है तो आप फोन नंबर दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ये मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूं कहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ऐड ए बटन टू योर पेज, मेक इट इजी फॉर वेरियस थिंग्स टू डू, बुक अपॉइंटमेंट एंड ऑल, ये अभी हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है कि हमारे पास यहाँ पे आप देखें स्टेप्स 6 ऑफ 13 स्टेप्स कंप्लीटेड। ये आपको एक एक करके स्टेप्स को आपको कंप्लीट करना है। एस्टैब्लिश योर पेज आइडेंटिटी, ये कंप्लीटेड है। 5 स्टेप्स लेफ्ट। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अपनी वेबसाइट का URL डालिए। ठीक है, या तो अगर अभी आपके पास वेबसाइट है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज मोर में जाके आप कह सकते हैं सेव एंड फिनिश लेटर, दिस डज नॉट अप्लाई टू माई पेज, एनीथिंग दैट यू कैन डू इट विल बी कंसिडर्ड एज डन। ठीक है, तो मैं इसको अभी ये कर देता हूं। मैं चाहूं तो अपना वेबसाइट का URL दे सकता हूं, बट मैं ये कह रहा हूं कि विल बी डूइंग इट। ऐड लोकेशन इन्फो, ये लोकेशन इन्फो जो भी आपका एड्रेस है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एड्रेस है, मैं इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ। ये मेरे रेसिडेंस का एड्रेस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया और ये एड्रेस हमारा सेव हो गया। ठीक है, और आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं माई पेज डज नॉट हैव ए लोकेशन। तो अगर मैं इसको करूंगा तो लोकेशन का ऑप्शन हमारे पास से खत्म हो जाएगा। राइट, सो एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। बट इफ यू रिमूव इट, इफ यू पुट द लोकेशन, तो ये क्या होगा कि आपका लोकेशन अपने आप इनेबल कर लेगा ये। ओके, और इस तरह से करने के बाद जैसे ये सेव हो जाता है
इसके अंदर सेव करने का ऑप्शन कुछ नहीं आता, जैसे ही आप इंफॉर्मेशन डालेंगे थोड़ा सा आप स्टे करें, ये इंफॉर्मेशन हो जाता है। ऐड बिजनेस आवर्स, आप ऑलवेज ओपन, परमानेंटली क्लोज तो नहीं है, ड्यूरिंग सेलेक्टेड आवर्स, ओपन ड्यूरिंग सेलेक्टेड आवर्स करेंगे तो ये आपका मंडे से लेकर संडे तक ये पूरा का पूरा ऑप्शन आ जाता है। आप अपने अपने वर्किंग के हिसाब से, अपने हिसाब से आप इसको ओपन कर सकते हैं। मंडे इट इज ओपनिंग फ्रॉम 10 o'clock, क्लोजिंग एट सो एंड सो टाइम, दिस एंड दैट। ऑलवेज ओपन रखना चाह रहे हैं तो ऑलवेज ओपन रख लिए। ओके, so this is how it is also saved, right? Add a phone number, मैं यहाँ तीसरा चीज बोल रहा है add a phone number, तो यहाँ पे फोन नंबर तो सबसे पहले हमें अपना कंट्री कोड चुनना है, राइट? और ओके, तो इस फोन नंबर से जो जो पेजेस हमारे कनेक्टेड हैं वो यहाँ पे आ गया। ओके, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने बिजनेस पेज एक बार में, एक प्रोफाइल से कितने बिजनेस पेज बना सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। बट थिंग इज लाइक इफ यू आर क्रिएटिंग मल्टीपल पेजेस यूजिंग द सेम प्रोफाइल पेज, यानी एक आप अपने पेज, अपने पर्सनल पेज से अगर आप 10, 20, 40, 50 अगर आप बना रहे हैं, तो कभी कभी अगर स्पैमी चीजें होती हैं तो आपका प्राइमरी अकाउंट भी इफेक्ट होता है और फेसबुक उसको होल्ड कर देता है या डिस्टर्ब कर देगा या फिर ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए बेटर है जो पेज हम बनाएं उसको या तो हम स्टैंडर्ड वे में बनाएं, या फिर उसके बाद अगर आपको यूज नहीं करना है तो सेटिंग्स में जाके उस पेज को हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है कनेक्ट विद व्हाट्सएप। ठीक है, जैसे ही मैं कनेक्ट विद व्हाट्सएप करता हूं, यहाँ पे मुझे अपना नंबर देना है। ऑलराइट, जैसे मैं यहाँ पे नंबर दूंगा, नीचे आएगा सेंड कोड का एक ऑप्शन आएगा। सेंड कोड, ये मेरे मोबाइल पे इसका कोड आएगा, मैं उसको डालूंगा। ये जैसे जैसे ही मैं कोड, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक कोड आया है, उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सो इट विल कनेक्ट। कंफर्म द मोमेंट इट गेट्स। सो सारे स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूस योर पेज। इंट्रोड्यूस योर पेज मीन्स यू नीड टू इनवाइट दिस पेज, जो भी पेज हमने बनाया है, यू नीड टू इनवाइट दिस टू मेनी पीपल। आपको एटलीस्ट 10 लोगों तक, जैसे इनवाइट 10 और मोर फ्रेंड्स, देन योर फ्रेंड्स लाइक योर पेज, इंटरेक्ट विद पोस्ट एंड कैन रीच आउट मोर पीपल। ये अभी करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए, बेहतर है। आप लोग जब क्रिएट कर रहे हैं तो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। चूंकि मैं ये डमी बना रहा हूं तो मैंने इसको कर दिया, विल बी डूइंग इट लेटर। ठीक है, क्रिएट वेलकम पोस्ट, तो ये क्रिएट वेलकम पोस्ट हम कर सकते हैं। वेलकम टू माय बिजनेस पेज ISL Digitos Academy for training राइट। मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे कोई भी आप लोग अपने वेलकम पोस्ट के साथ जो आपने फेसबुक पे के का पोस्ट बनाया है वो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बैनर पे गया, यहाँ पे बहुत सारे बैनर्स हैं। एक बैनर मैं ऐसे ही टेंटेटिवली मैं डाल रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब आप किसी भी चीज से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप हो जाएगा, कॉल टू एक्शन मैसेंजर हो जाएंगे, या और भी कोई चीज हो सकता है। तो अगर गेट व्हाट्सएप मैसेज में करता हूँ तो यहाँ पे ये आ जाता है। ओके, इस तरह से आ जाएगा और लास्ट में यहाँ पे ISL Academy व्हाट्सएप मैसेज का ये आइकॉन आ जाएगा। अगर मैं चेंज करके मैसेंजर कर दूंगा तो यहाँ पे मैसेंजर आ जाएगा। कुछ और करूंगा, गेट कॉल्स, चेक इन्स, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। गेट कॉल्स करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, फोन नंबर लिख दिया, कंटिन्यू, तो कॉल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमारा पोस्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है आप फोटो डालिए। मैं जो फोटो यूज किया था फिर से मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। राइट, सो दिस पोस्ट इज रेडी।
ठीक है। ये पोस्ट जो जैसे आप लोगों ने बनाया हुआ था वैसे मेरे पास भी एक पोस्ट था, मैंने इसको यहाँ पे ये कर दिया और ये रेडी हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक द कंप्लीट प्रोसेस, विच मीन्स हम कैसे फेसबुक के पेज को क्रिएट कर रहे हैं, आइकॉन जो आप लोगों ने यूज किया है वो कैसे करना है, और एक एक फील्ड को आपको कंप्लीट करते हुए और उस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब मैं जैसे मैंने बताया कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास शायद कोई बैनर होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, इसी में डाउनलोड्स नहीं है, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने फेसबुक कवर किसी और के लिए बनाया हुआ था, चलो मैं वहां पे यहाँ पे अगर पोजीशन करना चाहता हूँ तो ये मैं पोजीशन कर सकता हूँ, ड्रैग कर सकता हूँ। आप देखिएगा कि यहाँ पे जो लोगो है या जो भी है ये सारी चीजें प्रॉपर फॉर्मेट में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया, यानी यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस, ईमेल आईडी जो करना चाह रहे हैं, जो इमेजेस हैं सारा का सारा वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में आ रहा है, एंड दिस इज डन। सो दिस इज हाउ माय पेज विल लुक लाइक। ओके, तो यहां तक का जो प्रोसेस है इससे आप बिजनेस पेज क्रिएट कर लेते हैं। अब आप इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब इस पेज को एडिट कर रहे होते हैं तो नीचे सबसे नीचे एक सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। सेटिंग्स में जब आप जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जो कि आप कर सकते हैं। इन द सेंस दिस पेज इज पब्लिश्ड, अगर आपको ये पेज को अनपब्लिश करना है तो यहाँ पे एडिट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे पेज अनपब्लिश कर देंगे, तो अभी जो पेज पब्लिश है वो लोगों को विजिबल है। अगर मैं पेज अनपब्लिश करूंगा और सेव चेंज करूंगा तो पीपल विल नॉट बी एबल टू सी इट। सो इट्स नॉट दैट वंस यू मेड इट इट विल रिमेन फॉर एवर, यू कैन मेक दीज चेंजेस। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पोस्ट एंड स्टोरी शेयरिंग्स, आपके country restrictions. If you want your page should not be visible to any particular country, you can make that restrictions. अगर आप चाहते हैं कि आपका पेज एज रिस्ट्रिक्शंस है या कंटेंट मॉड्यूलेशन है, यू वांट टू पीपल नॉट टू पोस्ट सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट ऑन योर पेज और कांट टैग, तो आप वो सारे चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, टेम्पलेट्स एंड टैब्स, जो टेम्पलेट्स एंड टैब्स में क्या आता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई आप किस तरह का टेम्पलेट, यानी जो आपके ऊपर की तरफ जो ऑप्शंस आते हैं वो कौन सी प्रायोरिटी में होगा, तो आप उस चीज को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, आप अगर एडिट टेम्पलेट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप बिजनेस रिलेटेड टेम्पलेट है, अभी तो हमने सर्विस रिलेटेड टेम्पलेट यूज किया है इसलिए उस फॉर्मेट में। अगर हम बिजनेस रिलेटेड या वेन्यूज हैं, यानी कोई जैसे कन्वेंशन सेंटर है, उनके पास उनका अपना वेन्यू रहता है, तो वो उस तरह का टेम्पलेट यूज करना चाहें तो वो यहाँ से ले सकते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट है या पब्लिक सेलिब्रिटी है या पॉलिटिशियन है, तो अलग अलग टाइप का जो टेम्पलेट्स फेसबुक खुद प्रोवाइड करता है आप उसको चूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस जो आपके कस्टमाइजेशन के रहते हैं। फॉर एग्जांपल रिव्यूज को मैं यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ। ओके, तो मैं रिव्यूज को यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ, मैं इसको सिंपल सी चीज है उसको मैंने डिसेबल कर दिया और रिव्यूज हमारे पेज से हट जाएगा। शॉप भी हमारे पेज का ऑप्शन नहीं है, ये हम हटा सकते हैं। ऑफर्स हो सकता है, फोटोज हो सकते हैं, वीडियोज हो सकते हैं, तो हम जो भी चीज जैसे भी रखना चाहें हम उसको सेट कर सकते हैं और उसी हिसाब से ये सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, रीसेट एज डिफॉल्ट करने के बाद ये वैसे ही हो जाएगा। उसी तरह से नोटिफिकेशंस, एडवांस मैसेजिंग में क्या होता है कि एडवांस मैसेजिंग में आप क्वेश्चन सेट कर सकते हैं जैसे चैटबॉट होता है, मे नो योर नेम प्लीज, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं जो कि आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे भी आपको टाइम मिले उसको देखते हुए आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, वन टाइम नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल या फिर क्या मैसेज रिसीवर्स, आप ये सारी चीजें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है पेज रोल। पेज रोल होता क्या है कि आपने बिजनेस पेज अपना बना लिया,
बट आपके पेज को मैनेज करने के लिए आप इसका राइट किसी और को देना चाहते हैं, किसी एजेंसी को देना चाहते हैं, या अपने पास एम्प्लॉय है उसको देना चाहते हैं, या आपके साथ कोई और आपका पार्टनर है उसको आप पेज रोल असाइन करना चाहते हैं, यानी ही और शी कैन ऑल्सो मैनेज ऑन योर बिहाफ। तो यहाँ पे आपको 3 तरह के रोल्स मिलते हैं। एक एडमिन रोल होता है जो पेज क्रिएटर है, दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पे एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर, एडवर्टाइजर एंड एनालिस्ट। अगर किसी को हम एडमिन राइट्स देते हैं, अगर हम किसी को एडमिन राइट देते हैं, इसका मतलब जो कुछ आपने एज ए पेज क्रिएटर आपने किया है वो सारी चीजें वो कर सकता है, राइट। अगर आप उसको एडवर्टाइजर देते हैं, सो ही विल नॉट बी एबल टू मेक मच चेंजेस एक्सेप्ट ही कैन एडवर्टाइज यूजिंग योर पेज। ठीक है, वो राइट्स चेंज नहीं कर सकता, वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। ही कैन ओनली मैनेज एडवर्टाइजिंग ऑप्शन, एड्स का जो ऑप्शन आता है वही कर सकता है। मॉडरेटर बेसिकली he will moderate से, अगर आप एनालिस्ट दिए हैं या किसी और को दिए हैं, एडिटर ऑप्शन किसी और को दिए हुए हैं, so whatever post that editor will be doing it will not go to your page directly unless until moderated by moderator, right। तो Facebook अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आपको अलग अलग राइट्स दे रहा है और उस हिसाब से आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट रोल है जो कि मुझे ऐसा लगा कि आपको करना चाहिए। फिर जब हम इंस्टाग्राम के बारे में पढ़ेंगे, इंस्टाग्राम को किस तरह से इंटीग्रेट करना है, तो जब आपका, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम एक कॉमन प्लेटफॉर्म यूज करता है, तो आपका अगर इंस्टाग्राम का आईडी है तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके आप इंस्टाग्राम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट है तो आप यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम आईडी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जो भी पोस्ट आप फेसबुक पे कर रहे होंगे, it will ask you want it to be posted on Instagram। तो चूंकि यूजर नेम पासवर्ड आप सेव कर चुके होंगे, तो वहां पे जो भी पोस्ट आप फेसबुक पे कर रहे होंगे वो पोस्ट ऑटोमेटिकली डायरेक्टली आपका इंस्टाग्राम पे भी चला जाएगा। दिस इज हाउ वी डू इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग आवरसेल्फ फ्रॉम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ये सारी चीजें हैं। व्हाट्सएप ऑलरेडी, अगर आप व्हाट्सएप ऑलरेडी हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आई वांट टू डिस्कनेक्ट इट, आई कैन डिस्कनेक्ट इट, राइट। तो ये आपके कंट्रोल हैं। ओके, सो अगेन इट विल आस्क फॉर सम कोड बट आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। ओके, दिस इज हाउ your page will be created, and then once everything is done, then probably आप अपने पेज को प्रमोट करना शुरू कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कवर पेज भी बनाया है, आइकॉन भी बनाया है और पोस्ट भी बनाया हुआ है। पोस्ट के साथ क्या करना है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है कि जब हम पोस्ट कर रहे होते हैं, जैसे मैंने ये कुछ पोस्ट किया है लेकिन मैंने कोई हैशटैग नहीं यूज किया है, तो फेसबुक के अंदर हैशटैग ऑलवेज प्ले अ क्रिटिकल रोल। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और भी डिटेलिंग हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कोई पोस्ट करना चाह रहा हूं, आप लोगों के सामने ही मैं पोस्ट कर लेता हूं। ठीक है, एक और मैं पोस्ट कर रहा हूं जो विच इज गोइंग टू टॉक अबाउट सम ट्रेनिंग एंड ऑल। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पोस्ट कर रहा हूं और मैंने कुछ बनाया हुआ था पहले से ही, मैं उसी को पोस्ट कर रहा हूं। यहाँ पे एक ये है कि आपका ये इस फॉर्मेट का लिंक जो है ऑलवेज इट विल कनेक्ट टू योर व्हाट्सएप नंबर। मोस्टली क्या होता है कि अगर कोई आपसे व्हाट्सएप तक रीच करना चाहता है तो अनलेस अंटिल ही विल नॉट यू एज एन कॉन्टैक्ट मे नॉट बी एबल टू रीच, बट व्हेन यू पुट दिस काइंड ऑफ दिस फॉर्मेट प्रोबेबली इट हेल्प्स डायरेक्टली टू रीच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके अगर डिजिटल मार्केटिंग, लर्न डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कोई है ऐसा, हाँ मेरे ख्याल से है। ओके, अब इसके साथ मुझे हैशटैग्स को यूज करना है, तो मैं यहाँ पे हैशटैग्स यूज कर सकता हूं। जैसे नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ हैशटैग इज इट्स बेसिकली टैगिंग योर पोस्ट टू सर्टेन कीवर्ड्स। तो अगर कोई जेनरिक कीवर्ड भी सर्च कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, need not to explain
what is the importance, because आप लोग ये चीजें habituated हो, youngsters are always they are much advanced than us, ठीक है, तो आप लोग हमसे ज्यादा इस चीज के बारे में जानते हो, बट स्टिल ठीक है, इंक्रीज सेल्स, लर्न, लीड जनरेशन, राइट, improve ब्रांड, जो भी आप कर सकते हो, आप लोकेशन को भी टैग कर सकते हो, बट एडवाइज नॉट टू पुट मोर देन 15 टैग्स, राइट, एडवाइज नॉट टू पुट मोर देन 15 टैग्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ISL कॉलेज, तो अगर उससे कनेक्टेड है या कोई इस तरह का टैग यूज किया जा रहा है, तो अगर फेसबुक में कोई सर्च करेगा तो वो पोस्ट हमारा दिख के आ जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज। और इसके बाद तो ये टैग का इंपॉर्टेंस है। इफ यू विल बी पुटिंग मोर टैग्स देन इट इज गोइंग एज एन स्पैमी फॉर्मेट। सो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा करने से भी आपका रीच नहीं बनता है। ये कह रहे हैं टर्न योर पोस्ट इनटू ऑफर, ठीक है। अगर हम करना चाहते हैं देन हम कर सकते हैं, अगर अदरवाइज नहीं करना चाहते हैं तो इट विल गो डायरेक्टली एज दिस पोस्टिंग, ओके। ऑलराइट, तो इस तरह से हम अपने पोस्ट को प्लान कर सकते हैं, हम अपने पोस्ट को मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं, ओके। So I'll stop it for now, and then I'll leave it to you guys in case you have any questions. Then we will discuss about what to be done by you guys for tomorrow assessment review, and then accordingly we'll move forward. Any questions so far to you guys? No, sir. All right. So So one thing. Yeah. So can you just tell us what is mandatory and the required things as you put on post and banners? There must be like what should be there, like कि हमारा फेसबुक बैनर है तो उसमें ये चीज तो होनी ही चाहिए एलिमेंट्स, और बाकी आपके हिसाब से आप कुछ भी डाल सकते हो। इसमें एक चीज जो ये समझना है, फेसबुक हैज नॉट केप्ट एनीथिंग मैंडेटरी, बट फ्रॉम ए परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये कहता हूं, मैं जैसे अभी जो हमने बनाया, जो मैंने डाला है, अगर आप ये वाला बैनर, आपके सामने मेरा फेसबुक पेज दिख रहा है ना जो मैंने, यस सर। अब आप इस पेज को देखो, ये जिसके लिए भी हमने बनाया था, ठीक है। यहाँ पे ये है कि हम उसका क्या है, कॉल फोन नंबर है, उसकी कंपनी का नाम है, फिर उसके बाद उसके सर्विसेज आप देख रहे हो, स्टडी अब्रॉड, इमिग्रेशन, एग्जाम प्रिपरेशन, जॉइन अस, कैम्ब्रिया कॉलेज इससे रिलेटेड है, फिर उनका वेबसाइट है, ईमेल है, ठीक है। एक्चुअली इनका लोगो हमने नहीं यूज किया है बिकॉज दे वर नॉट श्योर अबाउट देयर लोगो, बट उस टाइम में हम प्रिपरेटरी काम कर रहे थे। लेकिन अगर आप अपना क्रिएट कर रहे हो तो मैंने अक्सर ये कहा कि कभी भी कोई भी आप बैनर बनाएं या कवर बनाएं, आप अपने ब्रांड को स्ट्रांगली पोजीशन करो। तो आप यहाँ पे कुछ देखते हुए, कोई एक पोजीशन देखते हुए लोगो आप यूज कर सकते हो, ओके। ऊपर और नीचे से थोड़ा सा गैप जरूर रखिए, क्योंकि जब आप पोजीशन करते हैं ना तो आपका वो पोजीशनिंग यानी कुछ कटे ना, क्रॉप ना हो जाए, तो इसलिए आप बेटर है बीच में रखें। जी सर। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, या फिर मैं आपको अपने दूसरे पेज का आपको दिखाता हूं, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर मैं अपने बिजनेस पेज का अगर दिखा रहा हूं तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा डिजिटोस का पूरा नाम नहीं लिखा है, मैंने अपना आइकॉन डाला है और डिजिटोस पूरा, क्योंकि अगर मैं डिजिटोस जो पूरा का पूरा मेरा नाम है, जो कि लोगो का एक पार्ट है, ठीक है, तो उसको अगर डालेंगे तो पूरा का पूरा फिक्स हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे डी यूज किया है, फोन नंबर यूज किया है, वेबसाइट यूआरएल, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस टू बूस्ट योर बिजनेस। लेकिन ये जो डिजाइन है ये आपको एक कनेक्टिंग फैक्टर डिजिटल पोजीशनिंग के लिए कर रहा है। तो ऐसा बैनर आप यूज करें जो कि आपके बिजनेस को सजेस्ट कर रहा हो, पोर्ट्रे कर रहा हो, एट द सेम टाइम बेटर है कि कुछ सर्विसेज को भी आप दिखा सकते हो। उसी तरह से मैं कुछ और बैनर्स भी आपको दिखाता हूं, सो दैट आपको, फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्रांड है, जोहरान करके एक ब्रांड है, अगर इसका देखें
तो दे जस्ट वांट टू हाईलाइट कि जो हनी है हेल्दी प्रोडक्ट और हनी से रिलेटेड जो चीजें हैं बस उसी को सेल करता है, राइट। सो दे जस्ट वांट टू पोर्ट्रेट, सो दे हैव केप्ट इट लाइक दैट। तो डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और हम क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं। बट आई सजेस्ट दैट हमें थोड़ा सा पोर्ट्रे ऐसा करना चाहिए जो कि हमारे लिए बेहतर है। जैसे एक एक्सपो से रिलेटेड एक, अगर हम एक पेज को देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जिस टाइम पे होना चाहिए था, जब भी होना है, तो उसके बारे में इन्होंने पोजीशन कर रखा है। सो दिस इज बेसिकली द एक्सपो विच इज गोइंग टू हैपन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। सो दे हैव केप्ट इट वेरी वेरी प्रोमिनेंट। एक इमेज है और दूसरी तरफ उन्होंने अपना मैसेजिंग डाल रखा है, राइट। तो ये चूंकि इवेंट से रिलेटेड है, देयर आर मल्टीपल पीपल अटैच्ड विद इट, सो दे हैव इंटेंशनली नॉट केप्ट फोन नंबर एंड अदर्स। बट वी एज एन स्टार्टर, हमें ये चाहिए कि अगर हम इन चीजों को यूज करते हैं, जैसे मैंने स्मार्ट माइंड्स का आपको दिखाया या मैंने अपना दिखाया है, ठीक है, तो वो एक स्टैंडर्ड चीज है जिसको कि आपको प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। अगर मैं एक और इवेंट का ही पेज में आपको दिखा रहा हूं, अगर यहाँ पे आप देखें, ये वाले इवेंट पेज में आप देखिए कि इन कंपैरिजन टू स्पोर्टेक्स दिस इज मोर क्लियर। ये अभी 24 से 26 दिसंबर को है, ये कौन सा एडिशन है, क्या है, और उसके बाद बुक योर स्पेस नाउ, ये सारी चीजें इन्होंने कर रखा है। ओके, इनके बैनर के अंदर भी है, वो चीजें हैं, आप देखिए यहाँ पे आने के बाद ये इनका लोगो है, ये इन्होंने सारी चीजें कर रखा है। तो मेरे हिसाब से हम ये कोशिश करें कि हमारा ब्रांड लोगो, जो लोगो है, वो फोन नंबर और थोड़े से सर्विसेज हमारे प्रोमिनेंटली दिख के आए, बिकॉज दैट हेल्प्स टू रीच पीपल, और आप अपने बैनर को भी पुश कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसा मैंने कहा आप लोगों को, एज सच कोई स्टैंडर्ड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है फेसबुक की तरफ से, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव your phone number, your logo, your phone number, services that you are offering and related images that you are there, you are doing it। अगर आप पोजीशन करें ढंग से तो आपका वेबसाइट यूआरएल आ जाता है, ईमेल आईडी आ जाता है, फोन नंबर आ जाता है, कुछ सर्विसेज आ जाते हैं, और ऊपर की तरफ आपका लोगो और वो सर्विसेज जो भी आप रिलेवेंट इमेज आप यूज करें। डोंट मेक इट टू क्लटरी, ठीक है। आप लोगों ने बहुत, जो लोगों ने बनाया है, सलवा ने बनाया है, शहरयार ने, या फिर और भी बनाए हैं, सैफ ने भी बनाए हैं, ठीक है। सो इट पोर्ट्रेस व्हाट यू आर इनटू। सो कवर पेज क्या होता है, कवर पेज आप डेली चेंज नहीं करते हो, मोस्टली नहीं कर सकते। यू कैन डू दैट, बट मोस्टली नहीं करते हो। मोस्टली क्या करते हो आप, पेज के ऊपर जो पोस्ट है उसको आप रेगुलर आप पोस्ट करते हो। सो टू हैव ए स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग, यू कीप इट एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ मंथ्स, और फिर अगर आपका कोई ऑफर आ रहा है, कोई और सीजन आ रहा है, देन यू कैन डू इट। से फॉर एग्जांपल अभी एक्समस और न्यू ईयर आ रहा है, तो इन दोनों चीजों को मर्ज करते हुए अगर आप कोई बैनर बना के आप पोस्ट करना चाहते हो एज ए कवर पेज, यस यू कैन डू दैट, ठीक है। बट एक ऐसा जो कि हमें आपके ब्रांड का वॉइस हो, उस तरह का बैनर हमको बना के वहां पे पोस्ट करना चाहिए। ओके ओके सर कैन आई शेयर, बिकॉज मैंने लैपटॉप ना लिया आया हूँ, कोई नहीं, कैन आई शेयर? या प्लीज you can। So is it visible? Yeah, So this was the banner I tried, okay, Facebook banner, okay, and for the post, these were the two posts. okay, yeah, fine। So अब यहाँ पे आपके हिसाब से आप देख लीजिए, yes you have kept it, your phone number, you have kept the Panthers logo as well, Rotary Club का है, yes that's okay, that is fine, yeah, you have created some effect in it so that थोड़ा सा visibility भी रहे, so that is fine, but that is fine, no problem at all, Okay. ठीक है, all right guys। so कल आपको क्या करना है, आप लोग सबको अपने जो है फेसबुक पेज, जो जैसे मैंने बताया है आप लोगों को, फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करना है, सारे सेटिंग्स करने हैं, फिर उसके बाद कल पोर्ट्रे करना है, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एड्स एंड अदर थिंग्स। ओके, तो कल हम सबका जो भी पेंडिंग असाइनमेंट है वो भी आप लोग कर लीजिए,
फेसबुक पेज बना लीजिए, उसका जैसे 3-4 चीजें हैं जैसे मैंने किया बताया है, और मैं ये वीडियो ASAP मैं अगले आधे घंटे के अंदर ये शेयर कर देता हूँ, सो दैट आप उस चीज को देख के आप लोग अपना असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अब्दुल्ला जी भाई। सर, हमारे पास फेसबुक नहीं है, फेसबुक इंस्टा यूज नहीं करते, सिर्फ व्हाट्सएप ही। तो आप फेसबुक क्रिएट कर लीजिए, आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए। जब डिजिटल मार्केटिंग हम लर्न करेंगे, मार्केट करेंगे अपने आप को, तो जहां लोग हैं वहीं मार्केट करेंगे हम, राइट? जी ठीक है सर। ठीक है, तो आप अपना फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल, सबसे पहले आप अपना पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, वहां से आप फिर बिजनेस पेज क्रिएट कीजिए। ये तो जी, ठीक है। वर्कआउट नहीं, ठीक है, उसी तरह से आप इंस्टाग्राम भी करना पड़ेगा, बिकॉज पीपल आर देयर, हम वहीं मार्केट कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, जहाँ ओके सर। फुटफॉल से लोग आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड में या तो गूगल पे हैं या सोशल मीडिया पे हैं, तो आप हमें तो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट गाइस, ठीक है सर, ऑल राइट, हैव ए ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज, Allah Hafiz, sir. टेक केयर।